Dear students, today we have to learn about the chapter number 2, that is real numbers. Now let's recall our previous knowledge about the numbers. We know that n is the set of natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and so on, infinite set. W is the set of whole numbers, that is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. I is the set of integers, that is 0, 1, 2, 3 and so on, and in left side we have minus 1, minus 2, minus 3 and so on. We know that the set of rational number is denoted by Q, capital Q, and in set builder form the definition of the set of rational number is set Q is the set of all P upon Q such that PQ are integers and Q should not be equals to 0. हमने पहले या 8 क्लास में या हमने अभी 9 क्लास में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है, डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर भी हमने देखा है. नाउ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, set of integers and rational numbers all are the subset of real number. There is a subset relation between all these sets. N is the subset of W and it is subset of I and it is subset of Q and Q is the subset of R. Now see order relation on rational numbers. आपको दो रैशनल नंबर दिए जाएंगे, पता करना होगा कि these are equal to each other or greater or less to each other. यानी वो दो नंबर एक दूसरे के इक्वल है या एक दूसरे से कोई एक नंबर बड़ा है या कोई एक नंबर छोटा है. इफ़ P upon Q and R upon S are rational numbers where Q is greater than 0, S is greater than 0. First property, if P into S is equals to Q into R, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपने इस तरह से, P into S लिए और Q into R लिए, then P upon Q will be equals to R upon S. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है इस तरह से, तो तब दिए गए दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे. सेकेंड, इफ़ P into S इज़ ग्रेटर दैन Q into R, अगर ये प्रोडक्ट से ग्रेटर है, then P upon Q इज़ ग्रेटर दैन R upon S. इसको थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर. P into S ये प्रोडक्ट Q into R इस प्रोडक्ट से ग्रेटर है, तब कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, P upon Q होगा या R upon S, तो ये डिसाइड करेगा न्यूमरेटर. न्यूमरेटर वाला पार्ट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर, अगर स्मॉलर है तो स्मॉलर. हम देख सकते हैं यहाँ पर जो P है, इट इज़ द न्यूमरेटर इन द रैशनल नंबर P अपॉन Q एंड P इंटू S इज ग्रेटर. सो न्यूमरेटर वाला जो रैशनल नंबर यहाँ पर आएगा P से रिलेटेड मीन्स P अपॉन Q, it will be greater than R upon S. Now third, if P into S is less than Q into R, then P upon Q is less than R upon S. बिल्कुल सेम इसी तरह से देखेंगे यहाँ पे P into S ये प्रोडक्ट Q into R से स्मॉल है. फिर हम जाते हैं P पर. P is the numerator in P upon Q. So related to P, P upon Q is less than R upon S. This is the property of order relation on rational numbers. Now see some properties of rational numbers. If A, B, C are rational numbers, then there are properties जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, इन्वर्स है. यहाँ एडिशन के हिसाब से बताया गया है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बताया गया है. सबसे पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव. आपने दो रैशनल नंबर लिए A एंड B. A को आपने B में ऐड किया या B को आपने A में ऐड किया, तो तब A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए A 2 है, B 3 है, तो 2 + 3 5 हो गया। फिर ये 3 और ये 2, तो 3 + 2 यहाँ 5 हो गया, मीन्स A + B = B + A। मल्टीप्लिकेशन में A × B विल बी इक्वल्स टू B × A। हम सेम वैसी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ कि 2 × 3 6 होता है और 3 × 2 ये भी 6 होता है। एसोसिएटिव A + B, आपने पहले A में B को प्लस किया, बाद में C को प्लस किया, तो ये इक्वल आएगा किसके कि आपने A में प्लस किया B + C को। मल्टीप्लिकेशन में A × B × C will be equals to A × B × C. Now third is identity. There is an identity element which is called 0 for addition. If we add 0 in any number, then we get that number. Means A + 0 or 0 + A will be equals to A. In multiplication, there is an identity number which is 1. If any number is multiplied by 1, then we get that number. So A × 1 or 1 × A will be equals to A. Now inverse, property number 4. For every number, for addition, there exists a opposite number. When the number is added to the number, then we get 0. Here minus A is the opposite of A. So if A plus minus A will be equals to 0. In multiplication, for the number A, there is an opposite number which is 1 upon A. If A is multiplied by 1 upon A, then we get 1 with the condition that A should not be equals to 0. 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो एक तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप होता है। अब देख टर्मिनेटिंग टाइप में हमको आपको एग्जांपल 1 दिया 2/5, 2 को आपने 5 से डिवाइड करे, जाहिर सी बात है 0.4 आगे आएगा, मीन्स यहाँ पर डिवीजन का काम ख़त्म हो गया। तो ये जो टाइप हुई ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गई, यानी यहाँ काम ख़त्म हो गया। ऐसी -7/64 करे आपने, 64 से 7 को डिवाइड करे आप, तो आंसर आपका ये आ रहा है -0.109375। यहाँ पर भी आपका जो डिवीजन का काम है वो क्लोज हो गया है। सो इट इज़ आल्सो अ टर्मिनेटिंग टाइप। 101 को आपने 8 से डिवाइड करे, आंसर 12.625 आया, यहाँ भी आपका काम ख़त्म हो गया डिवीजन का। तो ये भी जो एग्जाम्पल है टर्मिनेटिंग टाइप है। दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में जो एग्जाम्पल दी है 17/36, 17 को आपने 36 से डिवाइड किया, आंसर 0.47। 2 इन्फिनाइट टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, तो आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.472 और उस पर आपने क्या लगा दिया डैश। यहाँ डैश लगाया इसका मतलब, या पॉइंट लगाया आपने, इसका मतलब यह है कि 2 जो है वो रिकरिंग फॉर्म में है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको याद रखेंगे आप। सेकंड 33 को आपने 26 से डिवाइड किया, तो आंसर आपका ये आया 1.269230 7692307। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रुप है डिजिट्स का 6922307 आफ्टर डेसिमल पॉइंट ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने इस पर एक बार लगा दिए पूरे ग्रुप पर। तो ये भी बताता है कि ये जो ग्रुप है बार बार डिजिट का रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप हुआ। 56/37 देखते हैं हम, तो ये 1.513, फिर 513, फिर 513, बार बार 513 ये रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1.513, जो रिपीट होने वाला पोर्शन है उस पर हम ऊपर बार लगा देंगे इस तरह से। तो इसका मतलब ये होगा, आप ये समझेंगे कि ये 513 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म। एक डेसिमल जो रिकरिंग डेसिमल फॉर्म है उसको हम P/Q वाले यानी फ्रैक्शन वाले फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। जैसे एग्जांपल 1 आपको यहाँ दिया कि एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 एंड सो ऑन इन P/Q फॉर्म। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.777 एंड सो ऑन। अब आपको मैंने इससे पहले बताया जो डिजिट या ग्रुप रिपीट होता है तो उस पर आप पॉइंट लगा देंगे
या फिर आप जो इस पर बार लगाएंगे। यहाँ पर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरह लिखा 0.7 पॉइंट यानी बार। ये और ये नंबर का मीनिंग एक ही है। अब आप क्या करेंगे, x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने x को 10 से मल्टीप्लाई करे तो आप 0.7 को भी 10 से या 0.77 वगैरह को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 10 इंटू 0.77 को आपने अगर 10 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ आंसर आएगा 7.7। फिर आप इस पर लगा देंगे बार, तो ये आपका 10x आ गया 7.7 बार। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 10x में से x माइनस करेंगे इधर लेफ्ट साइड, तो 10x में से x माइनस हो गया। ऐसी राइट साइड आप 7.7 में से 0.7 को माइनस कर देंगे। 7.7 में से आपने 0.7 को माइनस करे तो आपका आंसर कितना आएगा 7 इधर, और इधर 10 में से x माइनस करे तो ये 9x आएगा। सो x इज इक्वल टू 7/9। दिस इज द P/Q फॉर्म ऑफ द डेसिमल फॉर्म 0.77। इस टाइप के क्वेश्चन हमको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 7.529, 529, 529 एंड सो ऑन इन P/Q फॉर्म। सॉल्व करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 7.529, 529 एंड सो ऑन। मैंने बताया था यहाँ पर ये 529 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 7.529 ऊपर बार लगा दिया आपने। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, एग्जाम्पल 1 में 0.7 यानी डेसिमल नंबर या डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, तो आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रिपीट होते हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम x को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 इंटू एक्स आ जाएगा। जब आप 1000 से ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा तो 7529.529 बार मिल गया आपको। अब आप जैसे एग्जांपल 1 में किए थे हमने 1000x में से x को माइनस कर देंगे और इधर इस नंबर में से इसको माइनस करेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा 999x इज इक्वल टू 7522। नाउ वी हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type। यानी आपको टर्मिनेटिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिवीजन का काम ख़त्म हो जाता है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, जिसमें डिवीजन का काम ख़त्म नहीं होता बल्कि एक डिजिट या एक से ज़्यादा डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। कौन से टाइप में? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में बार बार एक डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 13/5, सेकेंड 2/11 एंड थर्ड 29/16 को सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो 4th और 5th आपको क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इस साल के लिए रिड्यूस हो गए, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसको आप होमवर्क समझ के सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको अभी इस साल एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। 13/5, 13 को हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, या आप जिस तरह चाहे वैसे डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करें तो 5 2 ज़ा 10 होता है। हेयर रिमेंस 3 को हम 30 समझ लेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, और 5 6 ज़ा 30। यहाँ हमको दिखाई देता है कि डिवीजन का यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग टाइप रैशनल नंबर। ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/5 इज terminating type। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर हमको 2 को 11 से डिवाइड करना है। 2 को 11 से डिवाइड करने पे आंसर 0.1818 एंड सो ऑन इस तरह आता है। इसको मैंने बताया था, हम इसको इस तरह से रिकरिंग फॉर्म में 0.18 पर बार लगा देंगे, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ये द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा आप हमेशा सॉल्व करते हैं, डिवाइड वगैरह करते हैं। सिंपली टेक हेयर 2 हेयर 11 से 2 को डिवाइड करना है। 2 डिवाइड नहीं होता तो सबसे पहले आप पॉइंट लगा देंगे यहाँ इस तरह से 0 पॉइंट। अब यहाँ ये 20 हो गया। 20 को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं 11 से। 11 1 ज़ा 11 हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन में 1 आ गया। 20 में से 11 को माइनस करें तो 9 हमको मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 0 लगा देंगे 90 के आगे, फिर 11 से डिवाइड करेंगे। 11 8 ज़ा 88 होता है। 90 में से 11 8 ज़ा 88, 90 में से 88 को माइनस कर देंगे। 90 में से 88 को माइनस कर देंगे तो हमको 2 मिलेगा। हेयर रिमेंस द रिमाइंडर इज़ 2। अब आप देख सकते हैं कि हमने 2 से स्टार्ट करे थे, फिर वापस 2 आया, फिर आप 0 लगाओगे, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 90 बचेगा, फिर 90 को डिवाइड करोगे 11 से 88 तो 8 आएगा। इस तरह से ये रिपीट होते चले जाएगा, मतलब 0.18 0.18 इस तरह आते जाएगा। तो हमारा आंसर जो मैंने आपको बताया वो आएगा 0.18। इस पर हम बार लगा दिए, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे सोल्यूशन। 29 को हमको 16 से डिवाइड करना है तो हमको आंसर यहाँ मिलता है 0.18125। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ मैंने आपको डिवाइड करके बताया है। 29 को हम 16 से डिवाइड कर रहे हैं। 16 1 ज़ा 16 होता है। थर्ड क्वेश्चन उसका सोल्यूशन। 29 को हमको यहाँ 16 से डिवाइड करना है। अगर हम 29 को 16 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मिलता है हमको 1.8125। यहाँ पर डिवीजन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया, मीन्स टर्मिनेट हो चुका है। सो द डेसिमल फॉर्म ऑफ 29/16 इज़ टर्मिनेटिंग टाइप। इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 29 को 16 से डिवाइड करना है। 16 1 ज़ा 16 होता है। 29 में से 16 आप अगर माइनस करें तो 13 आता है। 13 डिवाइड नहीं होता तो हम यहाँ 0 लगा देते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो ये 130 हो गया। अब 16 का टेबल हमको याद होना चाहिए। 16 8 ज़ा 128 होता है, क्योंकि हमको 16 का टेबल पढ़ना है 130 के आने तक। तो 16 8 ज़ा 128 होता है। 130 में से 128 माइनस करें हमने तो यहाँ 2 आ गया। फिर हम 2 के आगे 0 लगाते हैं तो ये 20 हो जाएगा। 16 1 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16 आएगा। 20 में 16 माइनस करें आपने 4 आएगा। फिर 0 लगाया आपने, ये 40 बन गया। फिर 16 2 ज़ा 32 होता है। 16 2 ज़ा 32। 40 में से 32 माइनस करें आपने तो आपको मिलेगा 8। फिर आप 0 लगाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। और 16 5 ज़ा आता है 80, और 80 में से 80 माइनस करें आपने 0 रिमाइंडर आने के बाद यहाँ पर जो रिमाइंडर हमारा, जिसको हम आर वगैरह से ज़ाहिर करते हैं, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, इसलिए ये डिवीजन का यहाँ प्रोसेस ख़त्म हो गया। सो ये टर्मिनेटिंग टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2.1। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। ये रैशनल नंबर्स को आपको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमको काम करना है यहाँ पे, लेकिन हमको यहाँ पर टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ डिवाइड कर देना है सिंपली। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th है और 5th है तो इस साल के लिए यहाँ पर ये रिड्यूस हो गए, तो ये आप होमवर्क वगैरह में इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तौर पर, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 127 को हमको 200 से डिवाइड करना है, तो हम सबसे पहले ये 2 0 यानी 100 से 127 को डिवाइड करेंगे। 127 को डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिलेगा 1.27।
और अपॉन में 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो 0.635 आता है। 25 को अगर हम 99 से डिवाइड करते हैं तो हमको 0.252525 मिलते जाता है। हम बार लगा दें तो ये 0.25 बार हो जाएगा। थर्ड 23/7 यानी 23 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमको ये आंसर मिलता है, मीन्स 3.28574, और इसका ये बार लगा देंगे यानी ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखे थे, हमने डेसिमल फॉर्म को P/Q फॉर्म में लाए थे, उसी तरह से हमको यहाँ सॉल्व करना है। पहला है 0.6, फिर 0.37 बार, फिर 3.17 बार, और आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 और ये जो 5 है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये साल के लिए यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया है। ये आप होमवर्क के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं 0.66, और यहाँ आगे हम डैश लगा देंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होता है तो तब हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। 10x विल बी इक्वल्स टू ये 0.6 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.66 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपको मिलेगा 6.6, और यहाँ फिर बार आ जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है आगे भी। अब क्या करेंगे, 10x में से माइनस कर लेंगे x को लेफ़्ट साइड में, और इधर राइट साइड में 6.6 बार में से माइनस होगा 0.6 बार। यहाँ आपको मिलेगा ये पोर्शन यहाँ डेसिमल वाला कैंसिल हो गया, तो यू गेट 6 हेयर, एंड 10 माइनस x विल बी इक्वल्स टू 9x। सो x इज इक्वल्स टू 6/9, एंड फाइनली सो x इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 9, सो यू गेट x इज इक्वल्स टू 2/3। दिस इज द रिक्वायर्ड P/Q form of the decimal number 0.6 बार। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0.37 बार, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। मैंने आपको समझाया था कि अगर एक डिजिट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 डिजिट है पॉइंट के बाद तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट है इसलिए हम इसको x को 100 से मल्टीप्लाई करें हमने, तो ये 100x हो गया। इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 37.37 आता है, फिर ये बार आ जाएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है आगे भी। अब आप 100x में से माइनस करेंगे x को, और राइट साइड में 37.37 बार में से माइनस करेंगे 0.37 बार को। ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा यहाँ 37, और इधर 100 में से x को माइनस करें आपने तो ये आएगा आपका 99x। सो फाइनली x इज इक्वल्स टू 37/99। दिस इज आवर फाइनल आंसर। थर्ड सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम सपोज करेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 3.17 बार, एंड इट इज इक्वल्स टू 3.1717 एंड सो ऑन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में क्वेश्चन में बताया कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमने x को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही हम इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो पहले से है, 0.17 100 से मल्टीप्लाई होकर 17 बन जाएगा, फिर 0.17 इस पर बार आएगा इस तरह से।
लेफ़्ट साइड में हम 100x में से x को माइनस करते हैं और राइट साइड में 317 में से 17 बार और राइट साइड में 117.17 बार में से माइनस करेंगे हम 3.17 बार को। यहाँ मिलेगा आपको 99x, 0.17 बार कैंसिल हो जाएगा, 317 में से 3 माइनस हुआ तो 314 बचेगा। सो x इज इक्वल्स टू 314/99। इट इज़ अवर फाइनल आंसर। यह हमारी प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गई।